Brought to you by Oil Challenge Packaged Drinking Water। लंबा था सफर अब लंबे है सिक्सर, पूरी दुनिया में झंडे गाड़े हैं मिस्टर। मैं नहीं तो कौन बे? Royal Challenge Packaged Drinking Water। मैं नहीं तो कौन? बांग्लादेश क्रिकेट को लेके काफ़ी हलचल मची हुई है। घमासान है क्योंकि हम जानते हैं कि आईसीसी ने अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश इंटीरियम गवर्नमेंट और उसके साथ साथ स्पोर्ट्स एडवाइज़र क्रिकेटर लोगों के साथ मीटिंग की। उस मीटिंग में क्या फैसला हुआ वो सचराचर एक स्टेटमेंट दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है एडवाइज़र स्पोर्ट्स एडवाइज़र आसिफ नजरुल और साथ ही साथ अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो कि प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की। उन्होंने क्या कहा है पहले आपको सुनाते हैं, फिर बोलेंगे कि ठीक क्या बोलना चाह रहे हैं वो। কিন্তু আমাদের যে নিরাপত্তা ঝুঁকি ভারতে খেলার ক্ষেত্রে, সেই নিরাপত্তা ঝুঁকি পরিস্থিতির কোনো পরিবর্তন ঘটে নাই। আমাদের যে নিরাপত্তা ঝুঁকির যে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে, এটা কোনো বায়বীয় বিশ্লেষণ বা ধারণা থেকে হয় নাই। এটা একটা সত্যিকারের ঘটনার থেকে হয়েছে, যেখানে আমাদের দেশের একজন সেরা প্লেয়ারকে উগ্রবাদীদের কাছে মাথা নত করে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড তাকে ভারত থেকে বের করে দিয়েছে, সোজা কথা বের করে দিতে বলেছে। तो इसमें कहा गया, आसिफ नजरुल ने ऐसा कहा कि उग्रवाद के लिए अभी भारत में बीसीसीआई जो मुस्तफिजुर रहमान है उनको आईपीएल से निकाल दिया था और ये एक जेन्युइन समस्या है जहां की सिक्योरिटी कंसर्न दिख रहा है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को और उनका कहना ऐसा है कि सिक्योरिटी और सेफ्टी भारत में नहीं है, इसलिए हम सब चाहते हैं वर्ल्ड कप खेलना, लेकिन भारत में हम कैसे जा सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या कहा चलिए सुनाते हैं। তো এখন আইসিসি যে টুর্নামেন্টটা তো ভারতেই হবে। আইসিসি আমাদেরকে যতই বলুক নিরাপত্তা আশঙ্কা নেই, আইসিসি নামে তো আলাদা কোনো দেশ নাই। যেই দেশে আমার একটা প্লেয়ার নিরাপত্তা পায় নাই, এবং যেই দেশে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড সরকারের একটা এক্সটেন্ডেড পার্ট, তারাই আমার প্লেয়ারকে উগ্রবাদীদের চাপে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ বা অনীহ হয়েছে, সেই দেশেই খেলা হচ্ছে। সেই দেশের পুলিশ, সেই দেশের সিকিউরিটি এজেন্সিরই দায়িত্ব হবে ক্রিকেটারদেরকে নিরাপত্তা দেওয়া। তো আমরা তাহলে ওই ঘটনার পরে কি এমন চেঞ্জ হয়েছে ভারতের যে আমরা ভাবতে পারবো যে ভারতে আবার কোনো উগ্রবাদী আস্ফালন হবে না, এবং ভারত আমাদেরকে মুস্তাফিজকে নিরাপত্তা দিতে পারে নাই। তো কি হয়েছে, আমাদের ক্রিকেটারদের, আমাদের সাংবাদিকদের, আমাদের দর্শকদের সবাইকে নিরাপত্তা দিতে পারবে। तो ये कहा गया है उनके तरफ से कि इस वक्त जैसे मुस्तफिजुर के साथ हुआ है वैसे ढेर सारे मीडिया पर्सनालिटीज़ उसके साथ साथ फैंस और क्रिकेटर्स जाएंगे तो उनको कैसे ये दे सकते हैं कि कहीं सुरक्षा की जो बात है वो कैसे हो सकती है। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी सवाल उठाए भारत पे और बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया पे, कि उन्होंने कहा ये जो बीसीसीआई है वो भारत सरकार की एक्सटेंडेड पार्ट है और वही जो है कि बीसीसीआई भारत सरकार की जितने भी कारनामे हैं उसके हिसाब से चल रहे हैं और कैसे ये हो सकता है। लेकिन ये भी सवाल उठना शुरू कर दिया है आसिफ नजरुल ने जो कहा है। अभी आसिफ नजरुल स्पोर्ट्स एडवाइज़र है बांग्लादेश इंटीरियम गवर्नमेंट की, लेकिन अब तो दिख रहा है कि उन्होंने टांग लड़ा दिए हैं इस बीच और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका कहना है कि बांग्लादेश भारत में नहीं आएंगे T20 वर्ल्ड कप खेलने। बाकी क्या कहा उन्होंने चलिए सुनाते। আমাদেরকে এই বিষয়ে কনভিন্স করার জন্য আইসিসি কোনো চেষ্টা করে নাই। আইসিসি আসল যে ইনসিডেন্ট সেটাকে বাদ দিয়ে তার স্ট্যান্ডার্ড যে সিকিউরিটি প্রসিডিউর সেগুলো নিয়ে আলোচনা করেছে। যেখান থেকে গ্রিভান্সটা, সেই ঘটনা নিয়ে আইসিসি কোনো স্ট্যান্ড নেয় নাই ঠিক মতো। এমনকি ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যে আমাদের কনভিন্স করার চেষ্টা করা যে এই ঘটনাটা ঘটেছে মুস্তাফিজের ক্ষেত্রে এটা একটা আইসোলেটেড ঘটনা বা আমরা এটার জন্য সরি, আমরা এই ব্যবস্থা নিচ্ছি, তোমাদের দর্শক, তোমাদের সাংবাদিক, তোমাদের খেলোয়াড়দের জন্য কোনো রকম যোগাযোগের চেষ্টা করেন নাই, কোনো রকম কনভিন্স করার চেষ্টা করেন নাই। ফলে আমাদের ডিসিশন পরিবর্তন হওয়ার কোনো রকম স্কোপ নাই। আমরা এখনো আশা করবো, আমরা মনে করি আমরা আইসিসি থেকে সুবিচার পাই নাই, আমরা এখনো আশা করবো আইসিসি সুবিচার করবে। আমাদের যে শিরোপা খেলার যে অধিকার, এটা শ্রীলঙ্কাতে
আমাদের খেলার সুযোগ রয়েছে এবং বহু নদীর পৃথিবীতে আছে যে অন্য একটা বিরুদ্ধে সিকিউরিটি রিস্কের কারণে খেলা হচ্ছে। আমাদের এখানে জেনুইন সিকিউরিটি রিস্ক আছে। আমরা এখন আশা ছাড়ি নাই, আমরা আশা করব আইসিসি আমাদের জেনুইন সিকিউরিটি রিস্কটা সুবিবেচনার সাথে নিয়ে আমাদেরকে শ্রীলঙ্কায় খেলার সুযোগ করে দেবে বিশ্বকাপ। আমরা সেই আশাবাদ নিয়ে আমরা অপেক্ষা করছি। और उन्होंने ये भी कहा कि भारत कहीं पे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के साथ बात ही नहीं किया और उसके साथ साथ आईसीसी ये सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित नहीं किए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। और उनका ये भी कहना है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऐसी बात बताई नहीं गई, लेकिन स्पोर्ट्स एडवाइजर की तरफ से ये भी कहना है कि आईसीसी बीसीसीआई के चलाए हुए रास्ते पे चल रहा है। और ऐसा आरोप उन्होंने लगाया है ऐसी बातों में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उनका कहना है कि भारत क्यों समझौता नहीं किया। ये प्रश्न उठना शुरू कर दिया है कि कहीं पे अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड क्या चाहते हैं कि भारत सरकार उनको जो है कि रिक्वेस्ट करे, बीसीसीआई की तरफ से रिक्वेस्ट किया जाए तब वो खेलने आएंगे इंडिया पे। ऐसी जो दिख रहा है कि स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी ये कहीं पे राजनीतिक चाल जैसी बातें हो रही है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, चलिए देखते हैं। আর বাকি যা বলার তাই বলবেন। আমার একটা মিটিং উদ্দেশ্য ছিল আপনার সরকার এবং সাংবাদিকদেরকে ঠেলে দিলে কি ক্ষতি হতে পারে সেটাও আপনাদের সবার বিবেচনা নেওয়া উচিত। उन्होंने ये कहा कि अगर हम प्लेयर्स साथ साथ हमारे जितने भी संवाददाता है और उसके साथ साथ हमारे फैंस को अगर हम भारत में भेजते हैं तो क्या हो सकता है, ये भी हम लोगों को सोचना चाहिए। अगर खेलता है फिर भी बांग्लादेश अगर T20 वर्ल्ड कप में खेलता है तो क्या कॉन्सिक्वेंस होती है वो तो हम जानते हैं, लेकिन अगर नहीं खेलता है तो कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकती है वो भी आईसीसी को सोचना चाहिए और हमारे देश के लोगों को सोचना चाहिए। ऐसा उन्होंने बात कही। और उसके बाद चलिए सुनते हैं कि आमीनुल इस्लाम बुलबुल जो कि प्रेसिडेंट है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की, उन्होंने क्या बातचीत की है। যখন মুস্তাফিজকে আইপিএল এর একটা দল থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল, মুস্তাফিজ ওয়াজ নট ইনফ্লুয়েন্স সিকিউরিটি একটা বড় ইস্যু এই 2020 ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য। জানার সাথে সাথে আমরা আইসিসির সাথে যোগাযোগ করেছি 4th of January এবং 4th of January আমরা জানিয়েছি যে দিস ইজ দ্য সিচুয়েশন, গিভ আস অ্যান অল্টারনেট ভেন্যু or look this matter seriously। পরবর্তীতে বিভিন্ন পর্যায়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ হয়েছে এবং যোগাযোগের এক পর্যায়ে আমরা এস্টাবলিশ করতে পেরেছিলাম যে এই সিকিউর করেছে, আমরা আইসিসি করেছিল বিকজ অফ সিকিউরিটি ভাবে যে বাংলাদেশ বিশ্বকাপ খেলছে এবং আইসিসি বাংলাদেশের আবেদনটা মেনে নিয়েছে। কিন্তু এই সিচুয়েশনে যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি বাংলাদেশ খেলতে যাচ্ছে না বা বাংলাদেশকে একটা আলটিমেটাম বেঁধে দেওয়া হয়েছে, তারপরে আমরা সর্বস্ব চেষ্টা করে যাব। যেখানে আগেও বলছিলাম যে বিশ্ব ক্রিকেটের পপুলারিটি কমে যাচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের মতো দেশ যদি বাংলাদেশের মতো একটা ক্রিকেট লাভিং কান্ট্রি যদি মিস করে, আইসিসি বড় একটা মিস করবে। যেখানে ক্রিকেট বড় হচ্ছে, ক্রিকেট অলিম্পিকে যাচ্ছে 28-এ 32-এ, আমরা আমাদের মতো চেষ্টা করে যাব। আমরা এখনো হাল ছেড়ে দিচ্ছি না। ওটা বলে গেল একটা ওয়ার্ল্ড অর্গানাইজেশন এভাবে 24 ঘন্টা বেঁধে দিতে পারে না। উইল কিপ ফাইটিং। हमने सुना कि आमीनुल इस्लाम बुलबुल ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हम प्रयत्न करते रहेंगे, हम पूरी तरीके से हम रिक्वेस्ट करेंगे और आईसीसी को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे अभी भी जहां पे डेडलाइन क्रॉस हो गया है। और उन्होंने ये भी माना कि डेडलाइन क्रॉस हो चुका है, अब कुछ करने का नहीं है, लेकिन फिर भी उनका यही कहना है कि हम प्रयत्न करेंगे, हम कन्विंस करने की कोशिश करेंगे और ताकि श्रीलंका में मैचेस दिया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि स्पोर्ट्स की पॉपुलैरिटी कम होते जा रही है और जहां पे बांग्लादेश जैसी टीम अगर नहीं खेलता है तो आईसीसी का लॉस होगा। ऐसी बात उन्होंने कही कि आईसीसी का लॉस होगा। ये कैसे हो सकता है कि आईसीसी का लॉस होगा जहां पे आईसीसी को मैच फी और साथ में जो पार्टिसिपेशन फ़ी देना है तो उस पार्टिसिपेशन फ़ी वो स्कॉटलैंड को भी दे सकते हैं। तो इस वक्त यही जो सवाल है, यही जो बातें हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाल फिलहाल में वो रही है। लेकिन प्रश्न उठना तो शुरू कर दिया है कि कहीं पे कैसी इन्फ्लुएंस रही कि बांग्लादेश को खेल के सिवा बस सब कुछ करना पड़ा और बहुत सारी कौशल करनी पड़ी। लेकिन
अब सबसे बड़ी जो मिसिंग रहेगी बांग्लादेश के लिए वो है T20 वर्ल्ड कप जैसी इवेंट जो मिस होने वाली है बांग्लादेश के लिए। अल्टीमेटम दे दिया था आईसीसी ने कि अगर वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, अगर वो फाइनली 24 घंटे के अंदर नहीं बोलते हैं तो स्कॉटलैंड को रिप्लेस किया जाएगा, फिक्सचर में कोई बदलाव नहीं होगी, ऐसा आईसीसी ने कह दिया था। अब देखना है कि आईसीसी की क्या ख्याल आती है, क्या स्टेटमेंट आती है इसके बाद। लेकिन बांग्लादेश इस बार की वर्ल्ड कप में शायद नहीं खेलेंगे, शायद बाहर हो गए, कल ही बाहर हो गए थे, लेकिन अभी जो फैसला लिया गया है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और साथ में गवर्नमेंट की तरफ से कि बांग्लादेश क्रिकेट अब T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश क्रिकेटर्स नहीं खेलने वाले हैं। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को YouTube और Facebook पर।